as we mark the 14th of August, what does this day mean to you? This day means my life. मुझे एक बचपन से वालिहाना मोहब्बत है passionately with Pakistan. पाकिस्तान ना होता तो हम क्या होते? हफीज जालंधरी came to visit सर और मुझे कहा गया कमी कराना पड़ो. Inferiority complex क्या था? ये अंग्रेज आया, उसने तो वो चोर बन के आया था, सब कुछ लूट के ले गया. We're losing the value of our own culture and heritage and replacing it. मैंने कहा ये बना तो लिया, वाइट सफेद हाथी लगता है, चलाएगा कौन? ये जिसके लिए बना है वो ही चलाता है और वही आपको प्लान भी देता है. It was a miracle. I still think it is. अल्लाह ताला यही सेम जज्बा जी हम सबको दे. आपका जो सिस्टम है, the Noor Fatma Memorial System, how does that work towards the development of this confidence in young leaders? If there's anything I can do, you can do it much better. Just get out of there and out of your shells. खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या. What is your message on Independence Day? I pray daily कि अल्लाह हमारे मुल्क को दीन का महवर, यहाँ रहो, यहाँ पे बनाओ, opportunities करो, enabling environment बनाओ, make your country and see, and you will make yourself. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna atayna kal kausar. Salli li rabbika wanhar. Inna shaniyaka huwal abtar. Assalamu alaikum. Welcome to the special Independence Day podcast at the Noor Fatah Memorial System. Today's podcast is a special one. It marks the 78th birthday of this great nation. Today, we have the honor of speaking with a national leader whose life's work embodies the spirit of 14th August. Resilience, service, and the relentless pursuit for a better Pakistan. Joining us is Mrs. Shahima Tariq Rahman, Managing Trustee of the Noor Fatah Memorial System, a name synonymous with compassion, leadership, excellence, and innovation in healthcare, education, and community development. Under her visionary leadership, the Noor Fatah Memorial System has grown from a hospital to an ecosystem that heals, educates, inspires, and trains leaders for the future. Mr. Rahman, as we mark the 14th of August, what does this day mean to you? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. This day means my life to me. That's all I can say. And I get very emotional because देखिए मैं पाकिस्तान बनने के कुछ साल बाद ही पैदा हुई थी, लेकिन my family, the elders were all part of the Pakistan movement and they were so driven कि ये मेरे अंदर भी एक चीज़, एक उमंग सी पैदा हो गई थी. एंड मुझे एक बचपन से एक वालिहाना मोहब्बत है passionately with Pakistan and its people, not just bare land of Pakistan, that too, but its people. And I understand this to be a gift. And so 14th of August means a great deal in this respect. और therefore मेरा तो ख्याल है हम सबको इसके साथ आइडेंटिफाई होना चाहिए, क्योंकि ये समझती हूँ कि ये हमारी शनाख्त है, हमारी आइडेंटिटी है. अगर पाकिस्तान ना होता तो हम क्या होते? Fully agree. Thank you so much for coming on the show and sharing those sentiments with us as well. Speaking of Pakistan, I think when we look at independence, we also look at our national anthem. And for the viewers, I have a little bit of a piece of history as well. So, in the early days of Pakistan in 1947, we were a nation full of hope. And obviously, after change comes a lot of anticipation as well with regards to how the nation of Pakistan would treat its people. And during that time, we did not have a national anthem. So, in 1949, there was a person called Ghulam Ali who was a wonderful composer. He actually instrumentalized the tune for the national anthem, but there were no words. And so, in 1952, Hafiz Jalandhari, keeping in spirit with the rich heritage of the Persian language, composed the lyrics for the national anthem. And fun fact, did you know that within the national anthem there is only one pure Urdu word? Can you guess what that is? In 1953 then, ultimately, the national anthem was actually incorporated with those lyrics and the instrumentals. So, Mrs. Rahman, as I understand, you too have a very wonderful story when it comes to the national anthem of Pakistan. जी, वो मेरी याद पीछे जाती है. I was actually born to Saida Waheed and Dr. Abdul Waheed, but I was brought up by her sister Masouda and her husband Sardar Abdul Rashid Khan.
अब ऐसा है कि बचपन में आई थिंक आई मस्ट बी अबाउट 4 प्लस अ फ्यू मंथ्स years old एंड सरदार साहब वाज द चीफ मिनिस्टर। हर रोज शाम को कोई 6 बजे एक बच्चों का प्रोग्राम होता था रेडियो पाकिस्तान पे। बड़े गौर से मैं सुनती थी, उसमें कहानियां होती थी और शुरू होता था कौमी तराने से। सो मैंने मेरे दिल पे वो लिखा हुआ था, तराना पूरा सीखा हुआ था करेक्टली ट्यून समेत। मैं खड़ी हो जाती थी, सलूट करती थी। पता नहीं ये कहाँ से सीखा था, बट इट वाज देयर। और पाक सर जमीन शाद बात पूरा मैं साथ पढ़ा करती थी। तो you know my parents would kind of smile benevolently at me and all that. अच्छा, एक दिन जी हफीज जालंधरी came to visit सरदार, so I was summoned into the drawing room और मुझे कहा गया कौमी तराना पढ़ो। मैंने खड़े होके सलूट किया, शर्म वरम तो उन दिनों में शाइनेस तो थी नहीं। सो सलूट किया और पाक सरजमीन पढ़ना शुरू कर दिया। वो इतने खुश हुए, उन्होंने पकड़ के मुझे ऐसे कहा शाबाश बेटा। सो मैंने दिल में सोचा मैंने कोई खास कमाल क्या किया है। अच्छा, अब आई रियलाइज नाउ सैडली एंड इट्स सच अ रिग्रेटफुल थिंग फॉर अस, फॉर मी पर्टिकुलरली, हमारे बच्चों में, हमारे स्टूडेंट्स में आज किसी को तराना पढ़ना नहीं आता पूरी तरह, या गलत पढ़ेंगे या वो शाये होते हैं, भूल जाते हैं, सिखाया नहीं गया। कि ये तो देखें एक नॉर्मल सी चीज़ मुझे महसूस होती थी। अगेन ये तराना हमारा शनाख्त है, इट्स द बेस्ट नेशनल एंथम इन द वर्ल्ड। आई एम टोल्ड, ऑफ कोर्स द ट्यून पर्टिकुलरली, बट द वर्ड्स आर अनबिलीवेबल। कुव्वत अवाम, अल्लाह का साया और कुव्वत अवाम की, और ये क्या है, एक्चुअली हकीकत भी यही है, ये पाकिस्तान की हकीकत है। आई स्ट्रांगली बिलीव। बिल्कुल मैम। एंड आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट यू मेंशन्ड एज वेल इज के देयर इज डेफिनेटली अ सेंस ऑफ रिग्रेट कि ये तराना बना, ये मुल्क बना, इसकी जो एक ट्रैजिक हिस्ट्री है। लोग जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे दे पार्टीशनड एंड दे लेफ्ट ऑल ऑफ देयर बिलोंगिंग्स, और वो पाकिस्तान में आए, इंडिया से आए, और जो ट्रेन्स पे उस टाइम पे हुआ, आई थिंक हम सबको अपने रूट्स और अपने हेरिटेज को नहीं भूलना चाहिए. And I think what the Noor Fateh Memorial System does wonderfully well is it still remembers and it inspires people to remember your heritage, your legacy, your culture. आजकल जहाँ स्कूल्स पे बहुत ज़्यादा एक वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर एक फोकस जा रहा है, आपने जो एक लेगेसी बनाई है विद इन द नूर फातह मेमोरियल सिस्टम और इनके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये आज भी कल्चर को बहुत फर्स्ट रखते हैं, अल्लामा इकबाल की टीचिंग्स को, फिलॉसफीज को। इसके ऊपर आप थोड़ा सा बताना चाहेंगी हमारी ऑडियंस को? जरूर जी। अगेन लाइक आई सेड, हमारी आइडेंटिटी पाकिस्तान है, वी हैव नथिंग टू बी। देखें, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्या था, ये अंग्रेज आया, उसने तो वो चोर बन के आया था, सब कुछ लूट के ले गया, इंक्लूडिंग आर लैंग्वेज, आर नॉलेज। उसने मकौले आइज कर दिया ना हमें। मकौले ने जो था उनका बन गया लॉर्ड शॉर्ट, चोर थे वो। डेविड लिविंगस्टन क्या था, सब कुछ लूट के ले गया और वहां जाके उनको बड़ा कुछ बना दिया, और वो हमारे ऊपर एक मुसल्लत कर गए, एंड दे गेव अस एन इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। Now, education, I'm going to go off a little bit to say कि मुझे fellowship मिली. I'm a lifelong learner, so I went to the United States to get my terminal degree. तो अब वहाँ पे मैं जब पहले गई तो मुझे लगता था कि ओहो, ये मैं कहाँ आ गई हूँ, यहाँ तो बड़े बड़े उस्ताद हैं मेरे सारे क्लासमेट, मुझे तो कुछ आता नहीं। Fortunately, just before that, a year or so before that, मैंने एक डिप्लोमा लिया था इस्लामिक स्टडीज़ में, जिसमें कुरान, सुन्ना, अकीदा, सब कुछ, जूरिस्प्रूडेंस तक का एक कोर्स था। सो आई रियलाइज्ड, ओ, दिल में सोचा कि अगर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही वाज द बेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड, बेशक। पीपल लुक्ड अप टू मी इवन नाउ, अगर उनको ये कोई सवाल पूछे, वो क्या कहे, मुझे कुरान क्या सिखाता है, मुझे क्या। अच्छा जी, मैंने अपने दिमाग में देखना शुरू किया, एंड आई स्टार्टेड टू स्पीक। I would usually speak in the end when they'd all had their say, so which was in their own ways materialism and whatever it is आजकल के ज़माने। जब मैं बोलती थी तो सुनना शुरू होते थे, पहले तो ज़रा गौर से परेशान होने लगे, क्या कह रही है। फिर उसके बाद मुझे कहते हैं, ये तुम जो बातें करती हो इतनी एविडेंस बेस्ड लगती हैं कि जब तुम बात करके ख़त्म करती हो तो हमारे पास कोई आर्गुमेंट नहीं होती। वेयर डू यू लर्न ऑल दिस? तो डीन जो थी हमारी, वो कहने लगी, इट लुक्स टू मी दैट यू वांट टू राइट अ न्यू पॉलिटिकल थियरी। आई सेड यस, आई वांट टू रीराइट दैट पॉलिटिकल एंड थियरी। व्हाट यूनिवर्सिटी वाज दिस एट? दिस वाज एट द फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी। अच्छा, अमेजिंग। जी। ठीक है, सो आपने एक बड़ी मजे की बात की इसके अंदर, इंपीरियलिज्म। सो हम भी सोशल मीडिया पे होते हैं एंड वी सी अ लॉट ऑफ पीपल आवर एज
are actually using the term British colonial hangover. I think ये काफी लोग बोलते हैं. I personally refer to it as, you know, Stockholm syndrome, where if for those of us watching, अगर आपको नहीं पता, तो Stockholm syndrome is a psychological condition where you fall in love with your captor. ठीक है, and I think that's something that happened along the lines where today, as much as I can see, and as far as a lot of very cultured and educated people in our country can see, is that we're losing the value of our own culture and heritage and replacing it with a far inferior one, I would say. Would that be right of me to say, ma'am? देखिए हम ये जजमेंट कॉल्स तो नहीं है बट वी डू नो दैट मेरे साथ जो वहाँ पे मेरे क्लासमेट्स थे दे वुड आस्क मी ये तुम लोग पाकिस्तानी बड़े हो पता कहाँ से ये बातें सीखते हो सारे स्ट्रेट स्टूडेंट्स होते हो हाउ डू यू गेट दिस सो आई टोल्ड देम समथिंग आई सेड लिसन डोंट टेक इट बैडली बट हिस्ट्री टेल्स अस कि तुम लोग जो थे ना उस वक्त दरख्तों में रहते थे हमारे पास 5,000 साल की हिस्ट्री हमारे डीएनए में एम्बेडेड है वी वर रूलर्स एंड लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड इन बिल्कुल. दोज डेज अब वो कुछ हमने सीखा है हमारे पास एक हिस्ट्री है एक लेगेसी है सो मैं अपने बच्चों को यही कहती हूँ कि हमें किस चीज़ की इन्फीरियोरिटी है वाई शुड बी हमारे पास एक बहुत गहरी आइडेंटिटी है उसके बी प्राउड ऑफ इट मैं हर वक्त पाकिस्तानी कपड़े पहनती थी तो 9 लड़कियां थी हम क्लास फेलोज डीन भी टीचर समर वेमेन सारे काले कपड़े ग्रे कपड़े मुझे कहते हैं इतने खूबसूरत कपड़े तुम पहनती हो कहाँ से लाती हो कोई डिज़ाइनर क्लोथ है मैंने कहा जी नहीं ये मेरे सेल्फ डिज़ाइन है मेरे मुल्क के कपड़े वी इंजॉय कलर वाई शुड वी नॉट तुम लोग बोरिंग ब्लैक्स में फिरते हो ये तुम्हारी मर्जी है अच्छा हमें भी ऐसे ला के सो मैं अब अपने बच्चों को भी आप डोंट फॉलो थिंग्स ब्लाइंडली नो योर सेल्फ बिल्कुल. अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि the Noor Fatem oil system, now the whole system as it stands today, it's quite expanded, mashallah, and it's serving humanity in all the capacities. Lekin it didn't start as a planned thing. So I think, as far as I know, it started with a story of personal tragedy and heartbreak. Can you tell our viewers that don't know what that is? जी my grandfather Maulvi Firozuddin who was the founder of Firoz Sons So and the publishers, right? जी द पब्लिशर्स और फिरोजुल लगात के तो वो थे मोस्ट पीपल The, ऑल किड्स डू नो कि फिरोजुल बिल्कुल, the लगात Urdu फिरोज dictionary. डिक्शनरी के थे वो ही वाज द ऑथर ऑफ दैट तो his wife that is to say my grandmother Kaniz Fatma died in childbirth एंड उन्होंने बड़े ही वाज फिर अफसरदा भी थे हिज एल्डेस्ट डॉटर लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन नेवर मैरिड अगेन और उन्होंने अपना एसेट्स का एक हिस्सा फिर वक्फ कर दिया 1/3 देखिए हमें हुक्म है अल्लाह ने कहा कि सब ने पूछा नबी करीम को अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मैं ने पूरे दे दूँ इसे नहीं अल्लाह का हुक्म है कि एक तिहाई जिस तरह देनी दे दो लेकिन उससे ज़्यादा नहीं तो अब उन्होंने वक्फ की कि जी ये ऐसी चीज़ें बने जहाँ की डिस्पेंसरीज हो हॉस्पिटल हो एजुकेशन हो so people shouldn't suffer the same tragedy that my family suffered. So the first thing that came into being in this from this trust, they were dispensaries थी, scholarships देते थे शुरू में. But Saida Waheed, my mother, had this dream. She wanted to build a hospital for women and children. So this first came into being in 1977. And क्या था उन्होंने उन्होंने भी अपनी फिर वो एक 1/3 वक्फ कर दी सो इट्स नाउ फैमिली लेगेसी किसी पे एहसान नहीं है लोग समझते पता नहीं ये क्या करते हैं पैसे बनाते हैं कहाँ से लाते हैं भाई नहीं अल्लाह का हुक्म है और जब आप देते हैं तो वो कहता है मैं और देता हूँ विच इज़ ऑल्सो फैक्ट आपने और हमने सब ने देख लिया अच्छा सो दे शी स्टार्टेड टू मेक अ हॉस्पिटल जब ये बन रहा था तो आई वेंट टू हर एज अ चीकी यंग पर्सन कि ये आपने इतने सारे पैसे दे दिए इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया हमें पैसे दे देते हम कोई घर शहर बना लेते तो कोई प्लॉट खरीद लेते बहनों भाइयों को दे देते सो मैंने कहा ये बना तो लिया वाइट सफ़ेद हाथी ही लगता है चलाएगा कौन बड़े आराम से कहती हैं जिसके लिए बनाया है वही चलाएगा फिर एक दिन आया मैं भी आ गई टू हेल्प हर इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड आई सेड टू हर शी वाज गेटिंग वेरी ओल्ड बाय दैट टाइम आई सेड टू हर देखिए इतनी मेहनत से आपने एक चीज़ खड़ी की है उसको हमने एक जनरल टीचिंग हॉस्पिटल था सबसे पहले इसको जनरल हॉस्पिटल बनाया इंक्लूड मैन व्हाई आर यू सॉर्ट ऑफ इग्नोरिंग देम इसको बड़ा करें सो वो किया और देन आई सेड let's try to set up a medical college because as the administrator I used to sit and interview doctors and it was sadly it was not the best experience so I said Interviewing doctors. interviewing doctors for the Fatima Memorial Hospital and FCPS students क्योंकि आते थे हमारे पास वो थी training program so I said देखिए whatever we do we must do the best and the best is the best so let's try to make a medical college मुझे कहती हैं मैं तो बहुत बूढ़ी हो गई हूँ कैसे बनेगा इसको कौन चलाएगा मेरे दिमाग में भी याद था
I said, जी जिसके लिए बनाया है वही चलाएगा। हकीकतन आज मैं भी यही कहती हूँ, इट्स नॉट मी, मेरा कोई कमाल नहीं, ये जिसके लिए बना है वही चलाता है और वही आपको प्लान भी देता है और वो आपने तो सिर्फ एक ख्वाब देखनी है और एक नियत करनी है एंड इट्स आपके सामने वो फिर ताबीर उसकी होती है बिकॉज वो वादा उसका है। And more than 2 decades later, after the culmination of this idea, Aj Fateh Memorial College of Medicine and Dentistry is actually an A plus ranked institution. और हमारे जो graduates हैं, they have the highest placement rates abroad. They do wonderful things. They're all serving their community in wonderful capacities. So I think कि उस वक्त का एक देखा हुआ ख्वाब आज जब आप देखती हैं, it must be a very very proud moment for you. अल्हम्दुलिल्लाह, ये ख्वाबें तो मैं बचपन से देखना शुरू हो गई थी। लाइक सिंस आई वाज 10 इयर्स ओल्ड आई यूज्ड टू सी, आई यूज्ड टू प्ले जीओआर में सर्वेंट क्वार्टर्स इकट्ठे होते थे, यहाँ पे अभी भी है मेरे ख्याल है, शैनन रोड पे कहीं ऐसी जगह। तो बच्चे आ जाते थे, मैं उनको बुला लेती थी, अपने बड़े-बड़े बाग थे, भई व्हाई शुड दे बी लॉक्ड आउट देयर, खेलो मेरे साथ। देन आई रियलाइज़ कि स्कूल को ये वो, तो जिस स्कूल में मैं जाती हूँ, मेरे दिल में एक सवाल उठते थे। मैं जाके माँ-बाप को पूछती थी, मुझे सही जवाब टीचर्स को पूछती थी, कोई अच्छे नहीं मिले। इन द मीनवाइल माय फादर हैड फॉलन इल, उनकी सर्जरी हुई थी, तो कहीं मेरे कानों में पड़ा कि ये तो क्रिटिकल है। मैंने कहा मतलब ओह! क्रिटिकल का मतलब ही इज़ गोइंग टू डाई। आई गॉट रियली स्कैर्ड। सो आई वेंट रनिंग एंड मैंने ट्रांसलेशन से नमाज़ की किताब आती तो थी बट आई वांटेड टू नो व्हाट आई वाज़ सेइंग, सो आई स्टार्टेड टू प्रे डीपली। अच्छा जी, खैर से वो ठीक हो गई। समझ में आई कि किसी से नहीं पूछना, माय बेस्ट फ्रेंड इज़ माय मेकर। MashaAllah. पूछना भी उसी से है, बताए भी वो रास्ता। सो आई सेड व्हाट कैन आई डू? हाउ कैन आई मेक अ डिफरेंस इन दिस, क्योंकि मुझे पाकिस्तान, ये इन लोगों बच्चों से इतनी मोहब्बत है, मैं क्या करूं? सो मेरे माइंड में आया इंटीग्रेटेड कम्युनिटी program. Much later, when I was doing my master's in public administration, I started to think, by that time I'd become a sort of development professional with that learning. तो ये जो आप देखते हैं नैनसुख में है, मलिकपुर में है, जो 6 जगह हम अराउंड लाहौर हमने चूज़ की हुई हैं बाय गॉड्स ग्रेस, उसमें एजुकेशन है, उसमें हेल्थ सर्विसेज है, उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग है, उसमें माइक्रो फाइनेंस के भी कर्ज हसना है, नॉन इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस, सो दैट दे कैन स्टार्ट देयर करियर्स, बिकॉज ये ज़रूरत होती है। खैर वो माशाल्लाह बने। मेरा ख्याल था जी कि अच्छा ये 5वीं जमात तक होगी एजुकेशन, थोड़ी सी माइक्रो फाइनेंस। इट वाज ए मिरेकल, आई स्टिल थिंक इट इज़। वहाँ पे बच्चा हमने वहीं कम्युनिटी से लिए, उनको ट्रेन किया, टीचर्स बनाया। आज वो पढ़ती भी हैं, पढ़ाती भी हैं। 5वीं क्या, वहाँ पे मास्टर्स का पढ़ाया जा रहा है, प्राइवेटली एग्ज़ाम देते हैं मास्टर्स के जाके और पोजीशन होल्डर्स होते हैं। और कोई एमबीए है, कोई लॉयर है, कोई बैंक ऑफ पंजाब में काम कर रही है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दोज़ गर्ल्स। गाँव से उठी, जहाँ कोई एक अलिफ बे नहीं थी होती। पढ़ना किसी को आता नहीं था, जूते रखने सीधे आते नहीं थे, बाल कंघी नहीं होते थे, गार्बेज एंड फिल्थी होती थी कुछ भी। सो वेल वी कैन ओनली डू अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस। हमारी कितनी वक़्त है, लेकिन मैं समझती हूँ अपने से बहुत बढ़ के है। कहते हैं ना, एक दियार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, एक नया ज़माना, नई सुबह शाम पैदा कर, ये हो सकती है। अगर हम एक छोटी सी एक टीम है जिसने ये कर लिया, तो अगर से लेट्स अ फ्यू 100,000 इन दिस कंट्री गेट यूनाइटेड एंड दे डू लाइक दिस, तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में कोई 1 इंच भी ऐसा रहे जो कि खुशहाली ना हो। अल्लाह हमारा काम खुशहाली बाँटना होता है ना, आसानियाँ बाँटना। अल्लाह ताला यही सेम जज्बा जी हम सबको दे, जिससे आपने ये सिस्टम एक्सपैंड किया है। मुझे ये बताएं मिस्टर रहमान कि यू टुक ऑन लीडरशिप एट अ टाइम वेयर many few women were at the table. How was that experience? Did that affect you in any way? Did that hinder your progress in any way? Again, I was extremely blessed. I was very fortunate. Political household. So Sardar Sahab was leading the delegation to the United Nations on its 25th anniversary. सारे heads of state वहाँ पे मौजूद थे। मुझे हर जगह साथ ले जाया करते थे. So I was rubbing shoulders with I'm sorry, are you referring to Sardar Abdul Rashid? Rashid Khan. So wasn't he? I do recall hearing somewhere from someone in the institution that he was also someone who drafted the Constitution of Pakistan. He was part of that legislative assembly, the first one. Yes, So, very much. mashallah, you belong to a very historical family. First, Maulvi Firozuddin, now Sardar Abdul Rashid. You too, in your own right, are a force of leading the development charge, the equality charge. Mashallah, that's very, very amazing to hear, and I'm sure for our viewers as well. So, sorry, I sidetracked a bit. Let's get back to our original question. So, when very few women were at the table, and you mentioned that you belonged to a strong household, that was a blessing. Please carry on.
सो वहाँ पे ना वो मुझे हर एक को मिला भी देते थे। तो एक जगह उनको कहा गया, पता नहीं कहीं किसी ने बुलाया हुआ था, वन ऑफ कोई सेनेटर थे, उन्होंने लंच पे थोड़े से लोग थे, तो मैं भी साथ थी इनके। तो वो एज यूजुअल आफ्टर वो जो होते कोई तकरीर होती है, तो ही मेड द तकरीर सेनेटर। तो सरदार साहब कहते हैं मुझे तुम तकरीर करो। आई लुक्ड एट हिम अगास्ट, ये क्या मुझे कह रहे हो? आई थिंक आई वाज अ टीनेजर। अच्छा जी, जो मुंह में आया मैंने बोल दिया। those are the kinds of things that built up that confidence. वो शाइनेस तो शुरू में बचपन में भी नहीं थी, built up that confidence to speak my mind. Now when I came here, तो मुझसे बहुत बहुत सीनियर लोग थे यहाँ, कुछ कॉलेज जब बन चुका तो पता 6 के 7 रिटायर्ड वाइस चांसलर्स भी होते थे, जनरल्स भी थे, एंड देयर वाज दिस यंग वुमन। तो मुझे एक चीज़ मैंने कि आप, you cannot be a someone who insists that you have to do. You have to give respect first and see that people have experience, learn with them, and help them to do their best. And slowly टीम जो है ना आपके साथ, अल्लाह ताला खुद बेहतरीन लोगों को ले आता है. So you said my experience as a woman has always been one where I gave respect and I got it. Alhamdulillah. I never flaunted my own whatever I thought to be myself, something, you know, a big shot. No, not it, never. आज भी मैं अपने आप को काफ़ी एक sort of under the radar, low profile में रखना पसंद करती हूँ. So, So have I answered your question yes, you absolutely have. adequately? But it raises another question as well. Because you mentioned confidence, you mentioned that you were naturally a very confident person, and then obviously कुछ हमारी लाइफ में situations भी ऐसी होती हैं जो confidence को build करती हैं. So मुझे ये बताएं कि आपका जो system है, the Noor Fatma Memorial System, how does that work towards the development of this confidence in young leaders? That's the whole objective. I want to tell them, these kids of today, okay, look, if I can do something with those limited resources that we had and my mother had even before me, I used to think I have to do something more than she could. She did a great deal, amazing. मैं आज तक भी वो नहीं कर सकती जो वो कर गई हैं. तो मुझे ये है कि I want to say कि if there's anything I can do, you can do it much better. Just get out of there and out of your shells. Assert your own and ask your best friend. Best friend कौन है? अल्लाह. बेशक. एक ख्वाब देखें, ख्वाबें देखना है. हमारा असल में एक बहुत बड़ा ये भी अलमिया है कि हमने एक किस्म की ख्वाबें देखनी छोड़ दी. पर रोज का हम ड्राम, सुबह गए शाम किया, सोशल मीडिया लगा लिया, सो गए, अल्लाह अल्लाह खैर. अल्लाह के साथ ताल्लुक रखना बहुत ज़रूरी है. कायद आज़म और अल्लामा इकबाल की यही विजन है जिस पे पाकिस्तान बना है. इट्स अ गिफ्ट. जब ये गिफ्ट है, इसकी अमानत है, तो इसको हम कैसे इसमें कुछ ना हिस्सा डाल सके, हमारा फर्ज बन जाता है. बेशक. सो दिस आई थिंक आजकल के बच्चे इतने, इनके पास रिसोर्सेज, ये पॉडकास्ट है, ये सोशल, यूज इट टू द बेस्ट एडवांटेज. डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन इट. यूज योर गॉड गिवन एबिलिटीज. नहीं करोगे तो नाशुक्री है. नाशुक्री का दूसरा लफ्ज क्या है? कुफ्र. सॉरी टू से, बट आई थिंक हम बहुत गलत रास्ते पे हैं. पाकिस्तान की मैं अगर कोई किताब आज लिखूं, आई से इट्स द अनफोल्डिंग ट्रेजेडी ऑफ पाकिस्तान. ये जनरेशन XYZ नेक्स्ट जो है, इनके पास बहुत पावर है. इतनी हमारी जो 60% पॉपुलेशन है, अगर ये कुछ करे, हम तो सुपर पावर की क्वालिटी हैं, बन सकते हैं, बन जाएंगे बहुत जल्दी, मिनटों में बनेंगे, बिकॉज रब साथ हो. Within your statement, I think मैं खुद अगर इस पे रिफ्लेक्ट करूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसी टर्मिनोलॉजीज माइंड में आती हैं, लाइक ब्रेन ड्रेन एंड यू नो हाउ एनीबडी दैट्स गुड जस्ट वांट्स टू लीव द कंट्री. हम अपना टैलेंट लोकली उस तरह से शायद इन्वेस्ट नहीं कर पाते. मे बी इट्स अ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी. But at the same time, I see your story and I see what you've been able to achieve. And I think with your means, it would have been no problem. You had an education abroad as well to just pack up and, you know, go abroad somewhere. But instead, you decided to devote your life into the development of Pakistan. And I would go back and say, जो आपने एक चीज़ थोड़ी सी पहले बोली कि अगर 1 लाख लोग भी इस तरह आ जाएं जो कि वापस अपने मुल्क में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, तो शायद हमारे सामने एक डिफरेंट सिनेरियो और एक डिफरेंट इमेज हो पाकिस्तान की. वी होप एंड प्रे कि that दुआ of yours actually comes true inshallah taala. So let's talk about the Noor Student Leadership Program, I think, because we're on the same sort of wavelength for that. So the NSLP, as we call it, why did you start it and what makes it so unique? जी, just a little go back a little bit what you said about मेरा एक्चुअली ये था, एक मिशन थी कि हमने फातिमा मेमोरियल को पॉलिटिक्स फ्री कर और इसको इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाना है. ऐसी इंस्टीट्यूशन हो कि लोग बाहर से आएं और एक्चुअली हकीकतन यहाँ आते हैं बहुत से, आप यू नो, फॉरेन क्वालिफाइड लोग, और बिल्कुल. आके यहाँ सेटल करते हैं. बिकॉज आई डिड नॉट अलाउ एनी नॉनसेंस पॉलिटिक्स.
गो ऑन, और बड़े हमारे पास अच्छे माशाल्लाह. सो अब वो एक चीज़ तो एस्टेब्लिश्ड है बाय गॉड्स ग्रेस. नाउ रिगार्डिंग द स्टूडेंट लीडरशिप प्रोग्राम, आई नेवर थॉट कि ये यहाँ तक भी एक और चीज़ थी. आई जस्ट टुक माई ओन चिल्ड्रन टू द आउटरीच प्रोग्राम जो उन दिनों में वो चल चुका था. तो ये जब वहाँ गए, ऐसे जाके देखो, दिस इज लाइक 95% ऑफ योर कंट्री एंड brothers and sisters, go embrace them and see what. जो गर्मी होती थी, अगस्त के महीना था, तो जॉगर्स पहन लेते थे, कीचड़ में हम चले जाते थे. बट आई थिंक टू देम इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस. स्लोली देयर फ्रेंड्स स्टार्टेड, कजन्स पहले आए, फिर फ्रेंड्स आने शुरू हुए. तो फिर मुझे औरों ने कहा, कुछ स्कूल की प्रिंसिपल्स थी, उन्होंने, उनके बच्चे भी थे, कि व्हाई डोंट यू कम एंड टेल आवर स्कूल चिल्ड्रन, हम इनको भेज. सो जी आई वेंट टू मोस्ट स्कूल्स कि ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, आप आ जाएं, बच्चों को भेजें. सो दे स्टार्टेड टू कम, एंड इन दैट टुडे आई थिंक 30 इयर्स हो गए हैं उसको. और माशाल्लाह इट्स ग्रोन एंड ग्रोन. अब तो लोग बाहर से आते हैं, अमेरिका से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, इसको अटेंड करने. एक ये भी होता है कि उनको जो पॉइंट्स मिलते हैं, सीवी बनता है, आईवी लीग कॉलेजेस में एडमिशन्स भी मिल जाती हैं. बट द मेन थ्रस्ट इज दिस, मुल्क है हमारा, शनाख्त है हमारी, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की कोई ज़रूरत नहीं. बाहर जाना, ब्रेन ड्रेन करना, किसी और के मुल्क में रहना, अपने को बनाओ. मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन. तो ये एक चीज़ है which I feel is very important. That is something that's required, especially for the youth as well, because I see that मैं तो हमेशा कहता हूँ कि with a lot of the AI tools that are out right now, I was actually reading the research on this, and it surprised me actually, because in our age, when I did my degrees, during that time I had to work at a stretch for 6 to 8 hours. I had to read countless articles just to write one paragraph in the research corpus, right? So काफी ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती थी. And now science is actually proving that when you research a lot, when you read things, when you make those analytical sort of thoughts in your brain, it makes new neural pathways. With the advent of chat gpt, आपके वो pathways ही नहीं बनते. आपको जो भी क्वेश्चन है 1 सेकंड में आपको मिल जाएगा, आपने उसके लिए मेहनत नहीं की एक तरह की. So I think rather than maybe sitting at home and finding all of the answers on a digital screen, sometimes students do have to go out. And what the NSLP does wonderfully well, that I've seen from my own experience, is कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो इन्हीं डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, वो आउटरीच एरियाज में जाते हैं. दे सी डिफरेंट फैसेट्स ऑफ लाइफ. वो बीमार को भी देखते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली एक गरीब बच्चे को भी देखते हैं जिसके पास वो मीन्स नहीं है जो उनके पास मीन्स है, क्योंकि वी गेट स्टूडेंट्स फ्रॉम सम ऑफ द बेस्ट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एनीवेयर इन लाहौर. And obviously it's a very privileged class. I think even us, the people around me, we're all very privileged, because Pakistan ke andar in the rural areas there is a lot of poverty and underdevelopment. तो जब ये स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं तो मैंने खुद देखा उनके अंदर एक जज्बा आ जाता है कि इन बच्चों की हमने हेल्प करनी है, और and they carry that torch forward, as you've rightly said. So, and today NSLP, I think because of that very virtue and reason, is one of the most respected internship programs anywhere in Pakistan at the moment. और अल्लाह ताला इसे और भी कामयाबी दे, और ये जो एक मशल है ये आगे भी जो है चलती रहे, and may it burn even brighter inshallah ताला. So let's talk about Noor International University. You founded that in 2015. What was the story behind that particular venture? ये जो है ना जी, जिस वक्त कॉलेज बना, तो फिर मेरे दिल में ख्वाबें तो थी ना, क्या करना है, कुछ करना है, हेल्थ है, एजुकेशन है, पाकिस्तान है, बच्चे हैं, लोग हैं. सो इट वाज एट दैट टाइम दैट आई रोट अ 2-page साइनॉप्सिस काइंड ऑफ, जिसमें नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का एक कॉन्सेप्ट था कि जी. और उस वक्त उन दिनों में ये यूएचएस भी नहीं थी, सो देयर वाज अ ओपन फील्ड. पंजाब यूनिवर्सिटी से हमारे बच्चे एग्ज़ाम देते थे. मैंने सोचा अपनी यूनिवर्सिटी हो गई भाई, ये अपने देंगे, हम फिर क्या करेंगे, बाहर दुनिया से कुरिकुलम लेके आएंगे, फैकल्टी लेके आएंगे, और उनको वो पढ़ाएंगे जो आजकल की एक ज़रूरत है. देखिए बात ये, मैं आई बिलीव इन माई ओन दिस स्ट्रगल. द स्ट्रगल इज़ नथिंग, जैसे वो मियाँ मोहम्मद बख्श कहते हैं, मालिक दा काम फल फूल लाना, लावे या ना लावे, तो मालिक दा काम तो है ही फल फूल लाना. वो सारा कुछ करता है. वो रोट दैट कॉन्सेप्ट फॉर द यूनिवर्सिटी. एट द एंड ऑफ इट आई आल्सो वांटेड टू राइट लाइक दैट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की तरह एक हमारा यूनिवर्सिटी प्रेस भी होना चाहिए, बिकॉज हमारी लेगेसी है मौलवी साहब की. प्रिंटेड प्रेस था उनका, प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स थे. मैंने एक छोटा सा प्रेस लेके यहाँ लगा भी लिया था. अच्छा. जी. सो व्हेन आई रोट दैट कॉन्सेप्ट नोट, वी उसको एक्सपैंड किया और हम चले गए यहाँ हायर एजुकेशन कमीशन को ये दिया कि जी हमें यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया जाए. एक वो उसको उस वक्त जनरल साहब लीड करते थे. तो दे सेड, ही सेड टू मी, अच्छा बीबी,
ये जो है तुमने ये जिस तरह की यूनिवर्सिटी है, जिस तरह का ये दायरा है, व्हाई डू यू वांट टू रन अ यूनिवर्सिटी? मैंने कहा जी जनरल साहब ये हमारा फर्ज है अपने बच्चों को पढ़ाना, हम नहीं पढ़ाएंगे तो कोई बाहर से तो आके करने नहीं वाला। खड़े होकर सलूट ही से इनको तो दे दो, किसी और को देना या नहीं। सो वी डिड गेट दैट परमिशन। हाउएवर उसके बाद फिर ये हमारी तो वो रुकावट एक आ गई कि जी यूएचएस सेड कि ये कहीं से आप इम्तिहान और दे नहीं सकते। सो आई पुट इट ऑन सॉर्ट ऑफ पेंडिंग स्टेटस। फिर 2015 में पंजाब गवर्नमेंट ने हमें इसका चार्टर दिया एंड देन वी रिसीव्ड ए फुल चार्टर फॉर अ कंप्लीट फुल यूनिवर्सिटी। मेरा हिसाब से यूनिवर्सिटी अलजेब्रा टू ज़ूलॉजी पढ़ाती है। ये चीज़ नहीं होती कि एक लिमिटेड सब्जेक्ट पढ़ा लो। इट हैज़ टू बी समथिंग व्हिच इज़ ऑल राउंडेड। तो शुक्र है वो हमें एक चार्टर मिल गया है। So, what जी। brought about the sort of decision to call it Noor International University? Okay, so that's something interesting. Again, my relationship with my best friend, and my best friend is my creator, as I mentioned. तो एक दिन मैंने भी अपना फिर वो जैसे हिस्सा देना था ना, जमा करानी थी 1/3। आई थॉट कि अब कोई इसका फाउंडेशन बन जाए। सो माय लॉयर सेड टू मी कि इसका कोई नाम सोचा है? ऐसे रो नहीं नहीं सोचा तो कुछ नहीं है। तो मैं रात को उठी तहज्जुद टाइम, 2 नफल पढ़े और कुरान खोला। तो वो कहाँ खुला? 5वां रुकू है या छठा रुकू है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, so he is a lamp which lights up. I said, oh, नूर। तो मुझे हंसने के कहने लगा कोई 10-20 और सोचो, ये तो बड़ा एक यूज नाम है, ये रजिस्टर ही नहीं होगा। आई सेड जी देखिए आप सबसे टॉप पे ये रखें, बाद में कोई और रखे, मैं दे देती हूँ। मुझे अब हाफ हार्टेडली मैंने और कोई नाम दे दिए, मिशाल और सम सच थिंग। आई सेड पहले आप ये जाएं। तो कोई 11:30 मुझे फ़ोन आया कि जी कांग्रेचुलेशंस, नूर फाउंडेशन हैज़ बीन रजिस्टर्ड। मैंने कहा जिसने मुझे जहाँ से मिली है ना यही होगी इंशाल्लाह। सो दैट्स द हिस्ट्री। MashaAllah, that's a very, I think, impressive piece of history as well. Allahu Noor Samawate wal Ard. Allah is the light of the heavens and the earth. All of this, I'm hearing you speak, and it's literally giving me goosebumps as well, knowing you started from, a story of tragedy, personal heartbreak, and it evolved into a hospital, a medical college, a community, full-scale community development operation with the Noor Foundation, then a student leadership program, then a university as well. MashaAllah, may Allah embolden your spirit further, and may He grant you the strength to, make further development, because you've done a lot for Pakistan, especially at a time when not a lot of people, I think, would do the same. There are a lot of people that are working in amazing capacities in Pakistan, and I think you would be at the forefront of all of them. MashaAllah, with the legacy and over time how it's expanded. तो अल्लाह ताला फिर अपने ही बंदों की मदद भी करता है बेशक। सो मिसेस रहमान, मुझे ये बताएं कि एज ए नेशनल इंस्टीट्यूशन बिल्डर आई वुड कॉल यू, व्हाट इज योर मैसेज टू पाकिस्तान्स एजुकेशन सेक्टर टुडे? देखिए जी मैं आपको अगेन आई गो बैक ऑन दिस कि मुझे जो ख्याल था ना यूनिवर्सिटी का, आपने सवाल पूछा, आई वांटेड टू बिल्ड लेट्स से लाइक अ एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी, दैट्स ऑल आई कुड डू। मेरे पास तो इतने पैसा दौलत तो थी नहीं, तो जितनी थी वो लगाई। अक्सर लोग दूसरे लोगों से डोनेशंस लेते हैं, कुछ करते हैं। मैं तो ये समझती हूँ शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमने तन मन और धन जो था लगा दिया। आई थिंक इसका सिला अल्लाह ताला ने रिवॉर्ड दिया। आई वांटेड कि मैं प्राइमरी बल्कि प्री स्कूल से लेके अपने प्यारे पाकिस्तान के बच्चों को मार्जिनलाइज कम्युनिटी से उठाऊं, प्री स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक, पीएचडी तक पहुंचा दूं। आगे इनकी किस्मत अल्लाह नूर समावाते के हाथ में, द वर्ल्ड विल बी देयर ऑयस्टर। दैट वाज माय ड्रीम एंड अल्लाह हैज मेड इट कम ट्रू इन फ्रंट ऑफ अस ऑल। आई एम इटर्नली एंड एवर ग्रेटफुल फॉर दैट। तो ये जब हो गया तो मेरा मैसेज सिर्फ एजुकेशन सेक्टर को नहीं, मेरा से बल्कि मैंने ये प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अक्सर मुझे बुला लिया करते थे। उनको कहा कि जी आप पूरा का पूरा एक इसको एक इंटीग्रेटेड प्लान, हेल्थ भी हो, एजुकेशन भी हो, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। लोगों के पास पैसे कमाने की नहीं हो तो आगे जाके क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे एजुकेशन के लिए? सो इट शुड बी अ होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान फॉर ऑल ऑफ पाकिस्तान। हमारी एक लेबोरेटरी है, आप इसी को देख लें ये किस तरह से बनी और कितनी जल्दी ये कहाँ तक अल्लाह ने पहुंचा दी। तो वही पाकिस्तान भी उसने हमें तोहफा दिया हुआ है, ये क्यों नहीं करेगा? वो ही इज वेटिंग फॉर अस। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, बंदा कहे जो तेरी रजा है वो मेरी रजा। दैट्स व्हाट इज नीडेड, दैट्स माय मैसेज। Thank you very much for that.
अल्लामा इकबाल और कल्चर के ऊपर नूर फातिमा मेमोरियल सिस्टम काफ़ी ज़्यादा एम्फसाइज़ करता है। सो व्हाट डज़ इकबालियत मीन टू यू एंड फॉर द यूथ स्पेशली? जी, देखिए हमें अगेन ये एक बड़ा अलमिया है कि इकबाल को ना समझा, ना समझाया, आज तक इस पाकिस्तान में उन्होंने जो ख्वाब देखी थी, जिसने ख्वाब देखी थी, उनका तो कुछ समझाया ही नहीं जाता। मैंने पहली दफ़ा हम बचपन में तो लपे आती है दुआ स्कूलों में पढ़ते थे। आज मुझे नहीं पता कहाँ पढ़ाया, हम तो अपने स्कूलों में पढ़ाते हैं। लेकिन कहाँ पढ़ाई जाती है आई हैव नो आइडिया ऑल्सो। इन माय अंडरग्रेजुएट इयर्स मेरे 2 मेजर्स थे। वन वाज़ फिलॉसफी, द अदर वाज़ पॉलिटिकल साइंस। मैंने पेशावर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया। आई थिंक इट्स द बेस्ट आई नो इट्स द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन ऑल ऑफ पाकिस्तान। वहाँ पे दोनों इनमें पॉलिटिकल साइंस एंड फिलॉसफी में 2 पेपर्स नहीं होते, बाकी यूनिवर्सिटियों में 2 होते हैं। लेकिन उसकी फिलॉसफी पे कहीं भी ज़िक्र नहीं है, थर्ड पेपर। तो हमें उसमें फिलॉसफी में भी और पॉलिटिकल साइंस में भी पॉलिटिकल थियोरी का जो एक पर्चा था, अलहदा बिल्कुल, उसमें देवर ऑल दोज़ इंटरनेशनल, यूरोपियन एंड सो ऑन फिलोसोफर्स, पुराने भी, नए भी, और साथ उसमें अल्लामा इकबाल और इब्न खुल्दून अच्छा। दोनों में। अब जब मैंने वो पढ़ा तो मैं तो घूम ही गई। In that whole what a world and how he has written and what kind of stature he was, if there ever could be person who could prophesy history. और तो उनकी इसमें एक चीज़ आती है फ़र्द कामिल, उसके ऊपर भी अगर आप थोड़ा-सा इलैबोरेट कर दें। वो तो जी एक सीधी सी बात है कि जो एक मर्द मोमिन है वो फर्द कामिल फिर हो जाता है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने स्टुअर्डशिप के लिए अल्लाह इंसान को वाइस जेरेंसी के लिए पैदा किया। We have to realize that there is within each of us that potential. And it's not necessary कि हर एक का एक जैसा ही potential है, सबका अपना अपना होता है। And you have to achieve that. देखो जी ये है इंसान, उसका इतना potential है, इसका इतना potential है। इफ यू डीप डाउन अपने आप के अंदर आप देखो कि आपको क्या सलाहियतें न अल्लाह ने दी हैं, फिर ये मांगो कि वो ही सलाहियतें सारी आप इस्तेमाल करके ऐसे काम करो जिस वो उसको पसंद हो, और वो खुद आपको ये फिर रास्ते पे लेके आता है। और उसमें हमें ये पढ़ाया जाता है कि जी मुनकर क्या है और नेकी क्या चीज़ है। ये दो चीज़ें बड़ी, अगर हम सूरह लुकमान पढ़ें, हिज सॉर्ट ऑफ व्हाटएवर ही टेल्स हिज सन इज पार्ट ऑफ द कुरान टुडे, वही चीज़ें हैं, द 6-7 प्रिंसिपल्स, वो हम फॉलो कर लें तो आप मर्द मोमिन, फर्द कामिल बनने के रास्ते पे आ गए। तो मिसेस रहमान हमें ये बताएँ बिफोर वी कंक्लूड व्हाट इज़ योर मैसेज ऑन इंडिपेंडेंस डे, पाकिस्तान's 78th इंडिपेंडेंस डे फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान एंड हाउ कैन दे होन देयर पोटेंशियल? वेल, आई प्रे डेली कि अल्लाह हमारे मुल्क को दीन का महवर बना। ये होना है, ज़रूरी है, बिकॉज़ ये बना ही इसलिए है। हम उसको एक तरफ छोड़ के चले गए हैं, सीखते नहीं, सिखाते भी नहीं। बच्चों में ये चीज़ एक आनी चाहिए, ये सीखें। रीड द कुरान, इट्स सो ईज़ी। मैंने तो खुद वो बना के इनको सबको फॉरवर्ड भी कर दिए गए हुए हैं। इट्स नॉट माय ओन ट्रांसलेशंस, बट अंग्रेज़ी में लिख के वो मैंने भेजती रहती हूँ इनको। इतना आसान है उसको समझना, और जब समझो और दिल में उतार लो, यू नो योर डायरेक्शन, यू नो हाउ टू बिकम दैट लीडर दैट यू आर डेस्टिन्ड फॉर, यू नो हाउ टू बिकम अ स्टुअर्ड दैट यू आर डेस्टिन्ड फॉर, एंड देन यू विल बी एबल टू लीड योर कंट्री। एंड नॉट ओनली दैट, यू विल बी एम्बेसडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और दुनिया में फिर आपका जो मुल्क है वो अपनी जगह कॉमिटी ऑफ नेशंस में इसका हक बनता है कि वो वहां पहुंचे जो बिल्कुल टॉप लीडिंग नेशंस में है। और ये आज के बच्चे कर सकते हैं, बड़े होशियार हैं, बड़े ब्राइट हैं, बाहर चले जाते हैं, वहां जाके इन्वेंशंस करते हैं जो आपको पता है क्या कुछ बनाते हैं। पाकिस्तानी बच्चे दे बिकम नेशनल्स ऑफ अदर कंट्रीज, क्रेडिट उनको मिलता है। यहाँ रहो, यहाँ पे बनाओ, अपॉर्चुनिटीज करो, एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाओ, मेक योर कंट्री एंड सी एंड यू विल मेक योरसेल्फ। Pakistan is 78 years old today, and I understand that the College of Medicine and Dentistry at Fatah Memorial Hospital is now turning 25. So, काफ़ी ज़्यादा आपने यूथ के लिए तो मैसेज दिया है. What is your message for parents of our local parents? And obviously, we cater to an overseas population as well. For those overseas parents as well. तो देखिए जी, बीइंग अ पेरेंट माई सेल्फ, हमने कोशिश ये की है कि अपने बच्चों के लिए या ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि दे फील लाइक आवर ओन चिल्ड्रन यहाँ पे, एंड सॉर्ट ऑफ वी डू एक्चुअली ट्राई एंड ब्रिंग देम इनटू आवर फोल्ड लाइक दैट, वन। एंड सेकेंडली जो एक हम करते हैं कोशिश और की है माशाल्लाह वेरी सक्सेसफुली, वी हैव अ वेरी capable person that we got with us, PhD in Islamic Studies, who retired as chairperson of the Institute of Islamic Studies in the Punjab University.
उन्होंने आके क्यूरिकुलम के अंदर हमारे सारे क्यूरिकुलम में एम्बेड किया है। देखिए, कुरान तो हर चीज़ की एजुकेशन और नॉलेज रखता है ना, तो हर डिपार्टमेंट की रिलेटिव एनाटॉमी है या फिजियोलॉजी है या इवन मैनेजमेंट साइंसेज है या जो भी आप पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा, ज्योमेट्री में हर जगह आपको नज़र आता है कि कुरान में ये सब तालीमात मौजूद हैं। ये लिखा तो नहीं हो हर चीज़ की कि ये एनाटॉमी ऑफ बट व्हेन यू गो ड्रॉ, उनकी किसी किसी आयत या हर सूरत में आपको एक गाइडेंस मिलती है। सो बड़ी सक्सेसफुली हमारे यहाँ ये एक एम्बेड हो चुकी है कि हम क्यूरिकुलम में पढ़ाते हैं, सो दैट व्हेन आवर चिल्ड्रन कम हियर दे लर्न आवर ओन इस्लामिक वैल्यूज, आवर द ट्रेडिशंस व्हाट दे आर इन दिस, एंड वी आल्सो ट्राई टू टीच देम हिस्ट्री ऑफ आवर रोल मॉडल्स। नबी करीम being the first one सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत खदीजा herself, आज आप कहते हो खवातीन, शी इज़ माई रोल मॉडल। लुक एट दैट टाइम इन हिस्ट्री। आज वो फोर्ब्स 500 उनके ज़माने में होता है, शी वुड हैव बीन वन ऑफ द टॉप पीपल, द बिजनेस वुमन, लीडिंग बिजनेस वुमन, द मेन यूज्ड टू लुक अप टू हर, शी एक्चुअली वेंट एंड प्रपोज टू हर टू बी हस्बैंड। बड़ा काम है। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं। यू हैव टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड डेवलप, एंड दीज आर व्हाट वी ट्राई टू टीच एंड फॉलो। तो मैम मुझे बताएं कि इन द सेम कॉन्टेक्स्ट फॉर द लास्ट 47 years you have been pioneering allied health sciences की जो एजुकेशन है, आपकी विजन तो बहुत पीछे जाती है। अब लोगों को इस चीज़ का एहसास हो रहा है। उस टाइम पे तो आई थिंक कि किसी को पता भी नहीं होगा कि ये क्या है। बट आई थिंक कि फॉर द लास्ट 47 years organizations and institutions like the Saida Waheed College of Nursing, based on your late mother's name, and the Institute of Allied Health Sciences has actually brought on a transformative change. और आज जब हम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारे पैनल टॉक्स या फायरसाइड चैट्स होते हैं, वो हमें कह रहे होते हैं कि हमारी बहुत रिक्वायरमेंट है for this field. Nurses, they're actually quite valued abroad बाहर वाली market में, and there's quite a shortfall for allied health professionals. So how did that thought come about, और वो किस तरह आप पेरेंट्स को उनके बारे में भी थोड़ा सा अगर बता दें? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। फॉर इंस्टेंस, जब हमारा ये शुरू-शुरू में कॉलेज ऑफ नर्सिंग क्या था, इट वाज़ अ स्कूल ऑफ मिडवाइफरी, बिकॉज़ दैट टाइम माय मदर शी रियलाइज़ कि जी हमारे पास तो ये शॉर्टेज है। तो उन्होंने मिडवाइफरी का स्कूल शुरू किया और थोड़े अरसे में उसको अपग्रेड किया टू स्कूल ऑफ जनरल नर्सिंग। सीटें हमारे पास 20 होती थी। कोई बच्चे नहीं आते थे, कभी 18 होते थे, कभी 17 होते थे, इससे ज़्यादा 20 भी कभी पूरे। Now, in the year 2007, there was a golden opportunity because by that time, I had been at come to a level where वो बुलाते थे हर साल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जब बजट बनता था, ADB वो होती थी समटाइम इन अप्रैल। तो उसमें जब चेयरमैन ने पूछा कि जी नर्सिंग की क्रिटिकल शॉर्टेज है हमारे अपने मुल्क में भी बाहर भी, तो कोई इसको एनीबडी वॉलंटियरिंग टू सेट अप अ नर्सिंग स्कूल, कैन समवन डू इट? साइलेंस। मैंने हाथ ऊंचा किया। मैंने कहा जी यस वी कैन डू इट एंड वी कैन डिलीवर। हाउएवर, ये बड़ी सख्त एक मुश्किल है, जान जोखों का काम है। We can do it, we can deliver, which needs a lot of funds which we don't have. If you're willing to support it, we can do it, but don't, I'm not going to call you, you call me. अगले दिन जी फ़ोन आ गया, हम एक प्लान भेजें। बैठ गई, मैंने लिख दिया, फॉरेन फैकल्टी भी, क्यूरिकुलम ये चाहिए, हॉस्टल्स, कंप्यूटर साइंसेस। अच्छा जी, वो हो गया प्रूफ। आगे उनकी मैंने देखी बाद में मिनट्स की, जी ये गवर्नमेंट 30 साल भी लगी रहे तो ये नहीं कर सकते, बिकॉज फातिमा मोरिल के पास चीज़ें मौजूद हैं, दे हैव द नॉलेज, द नो हाउ, एंड दे कैन डिलीवर। 30 साल हम नहीं कर सकेंगे, इनको दे दो। सो जी फर्स्ट टाइम इन 2007 हमारी एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ एज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एंड विद इन 3 months वी वर एबल टू, अल्हम्दुलिल्लाह अगेन माई बेस्ट फ्रेंड एट वर्क, कि वी वर एबल टू डिलीवर। It was the most comprehensive College of Nursing, Institute of Nursing in all of South Asia. I was going to leave my son to college. तो मैं गई अमेरिका और जॉन्स हॉपकिंस को विजिट किया। वहाँ से मैंने तस्वीरें भेजी, ये इक्विपमेंट चाहिए। फैकल्टी को एक हमारे पास आती थी, मैंने तो उनको मैंने कहा, शी वाज अ पीडियाट्रिक्स नर्स, PhD थी, जैनेट मैकग्रेगर। तो उनको मैंने कहा कि आप आए, हमें हेल्प अस। व्हेन शी केम एंड शी सॉ कि ओह, कहती 30 साल मैं अपनी गवर्नमेंट से लगी रही हूँ कि हमें इस तरह की चीज़ चाहिए। मैं तो देखती हूँ तुम लोग तो यहाँ वो कर जाओगे, लेट मी गो बैक। इफ मैंने कहा मुझे चाहिए 2 लोग। कहती है लेट मी गो बैक टू माय कंट्री, 2 महीने दे दो, आई विल गो होम एंड रिजाइन एंड ब्रिंग अनदर PhD विद मी। शी डिड दैट। शी केम बैक इन 2 months। उन्होंने इसकी फिर फाउंडेशन सारी पूरी रखी ऑन द लेवल ऑफ एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, एंड बाय गॉड्स ग्रेस पहले इम्तिहान में
Our nurses won straight off top positions and distinctions. आज भी हमारा जो सईदा वहीद कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, जहाँ जाती हैं बच्चियाँ इंटरव्यू के लिए, बच्चे लड़के भी हैं, तो कहते हैं अच्छा तुम वहाँ से आए, इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं, और हायर्ड, अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी। तो मैं फिर यही कहूँगी कि इतनी क्रिटिकल शॉर्टेज, इतनी नीड है कि आप आए। हमने तो सीटें भी अब इन्हेंस की हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं होती, बच्चे इतने होते हैं, बट यहाँ आए बिकॉज हमारी एक चीज़ है, कोशिश हमेशा क्वालिटी को मेंटेन करना। एज फार एज अलाइड हेल्थ साइंसेज इज कंसर्न, अगेन ये भी एक चीज़ थी जिसकी बहुत ज़रूरत थी। एक छोटा सा इंस्टीट्यूट था जो मेयो हॉस्पिटल के साथ कनेक्टेड था, और वहाँ आई थिंक दो चीज़ें भी, एक फिजियोथेरेपी होती थी एंड समथिंग एल्स। एंड आई थॉट कि दुनिया में तो यहाँ अब देर आर 150 एंड ग्रोइंग नंबर्स ऑफ स्पेशलाइजेशंस, बिकॉज दिस इज अ टीम। डॉक्टर है तो उसने तो 15 मिनट करना है, नर्स ने साथ 24 घंटे भी लगे रहना है, एलाइड हेल्थ का भी साथ कनेक्टेड टीम है। सो देयर फॉर द एलाइड हेल्थ साइंसेज की इंस्टीट्यूट जो थी, दैट केम इन टू बीइंग इन 2007 में। तो हमारा ये बना, 2005 नर्सिंग स्कूल था जो बड़ा वाला बन गया, 2005 में हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज बना, or it's expanding now with new disciplines and requirements. But again, fundamental of the curriculum is international, with our own embedded कुरान की जो तालीम है उसके अंदर है, जहाँ हम उससे लेते हैं, and our own history and traditions and the feeling of कि ये हमारे बच्चे हैं। Bilkul, ma'am. What wonderful words to inspire us with. So that was Mrs. Shahima Tariq Rahman, a woman whose life's work is a testament to the power of purpose and the quiet strength of service. We thank you a lot, ma'am, for sparing your valuable time to inspire us with your words. I know you're a very busy person, but once again, I thank you a lot for giving me the opportunity and giving us this time. And I thank you, the listeners, for tuning in and listening to our words. At the end, I would request one final time from Mrs. Rahman to leave us with a dua before we close, inshallah ta'ala. I was going to say that जो मेरी हमेशा दुआ, my favorite one which I learned, एक हमारी यहाँ मेरी वालदा ने छापी, अंग्रेजी में भी उसकी मैंने ट्रांसलेशन रखी है, जो एक शुक्राने की दुआ है, और हमें हुक्म है कि 40 साल का जब बंदा हो तो ये करे, और देन एक्ट ऑन इट। मे आई से इट? Ma'am, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि औज़िनी अन अश्कुरा निअमतकल्लती अनअमता अलैया व अला वालिदैया व अन आमिला सालिहन तरदाह व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। और इन ट्रांसलेशन के, या अल्लाह हमें वो तौफीक दे कि जो अल्लाह की आपकी दी हुई नेमतें, सलाहियतें हमारे पास हैं, हमारे बाउजदाद को आपने दी हैं, उस सब को इस्तेमाल करते ऐसे अमाल बजा ला सकें जिससे अल्लाह आप राज़ी हो जाएं। हमारी ज़ुर्रियत में, औलाद में भी ऐसे बना लोग जो वो बने जो आपकी मर्ज़ियात पे चलने वाले हों, और आप उन्हें तौफीक दें कि वो आपके नेक और साले बंदे, मर्द मोमिन बन जाएं। या अल्लाह आपकी तरफ हम हाजिर हैं, रुजू करते हैं, ये दुआ कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन या इलाही। Ameen. Thank you, Ji, very much for listening. And Pakistan, Zindabad.